जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मुख उचरै शास्त्र खट, पिंग गिड़न चढ़ जाए। अंध लखै बदर सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। धन सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक दे हथ जोड़ के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਇੱਕੋ ਘੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਭੰਡਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਬਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਨਕਾ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕੋ ਲੈ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਗਦਾ ਰਹੋ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
वो आंदे ने जैसे एकाहारी एक बार पाकशाल बैठ भोजन के व्यंजन स्वाद के आघात है। जिस बंदे ने भाई गुरदास जी कहते ने सवेरे उठ के अपने विहार ते जाना, प्रशादा रज के छकेगा तो तां ही वो विहार करेगा। जेड़ा बंदा एक घड़ी की घड़ी सवेरे चौंके विच बह के ते प्रशादा रज के छक लवे तो वह सारा दिन काम करन जोगा हो जाता, एक घड़ी की घड़ी। क्योंकि जिन्हें बाहर 5-6 घंटे काम करना, कभी ये नहीं किसी ने किया भी 5-6 घंटे ही चौंके विच बह के प्रशादे छको तो फिर ही 5-6 घंटे को काम कर सकता। नहीं, घड़ी की घड़ी चौंके विच बह के जिहड़ा प्रशादा रज के छक लैंदा वो मुड़ के सारा दिन काम करन जोगा हो जाता। फिर अगों कहंदे ने जैसे बोझ भरी नाव अंगुरी तो बार होए पार पर पूर सब कुशल बिहात है। बेड़ी सवारियां दा पूर भर के ते दरिया दे उत्तों तरदी जाती है ते सवारियां दे भार करके सारी बेड़ी पानी विच डुबी हुई आ। एवें पानी तो 2 उंगलां बेड़ी उत्ते आ, बाकी सारी पानी विच आ। वो जिहड़ी 2 उंगलां ही उत्ते आ ना, ਉਹਦਾ ही सदका सारे का सारा पूर अगले पासे लंघ जाता है, सारे दे सारे पार हो जाते ने। भाई गुरदास जी कहते ने तैसे 8 पहर 60 जाम में जो एक घरी साध समागम करे निज घर जात है। 8 पैर ने दिन दे, इन्हां 8 पैरां दे विच हुंदियां ने 60 घड़ियां। ते भाई गुरदास जी कहते ने 8 पैरां च 60 घड़ियां ने। इन्हां 60 घड़ियां दे विचों जे कोई एक घड़ी भी आके संगत विच बह जाएगा तो भाई जी कहते ने उहदे सारे कीते हुए बुरे कर्म माफ करके ते महाराज उहनूं सचखंड लैके जाणगे। साध संगत की वडियाई, साध संगत की वडियाई सिफत। हाँ, ये गल है, असीं बंदगी वाले पुरखां दा जीवन वेख के कहने भी इन्हां दा बड़ा सत्कार है। बंदगी वालियां दे जीवन वाल ध्यान मार मार के कहने इन्हां दियां बड़ियां सिफतां ने। पर भाई गुरदास जी कहते ने वो सिफत जोग जीवन किवें बनिया, कदी संगत विच आण के झाती भी मारिया करो। वो सिफत जोग किवें बन गया है, क्यों संगत विच बार बार आवाज़ां मारियां जा रही भी आओ। भाई जी का एक होर बचन आ, वो कहते ने संगत विच रबाब वजदी है। संगत विच लिया के गुरु साहब जी फिर सिखां नूं किवें घड़दे आ। वो आंदे ने संगत विच रबाब वजदी आ ते वजदी हुई रबाब की आवाज़ सारियां नूं चंगी लगदी। थोड़ी जी इको होर घटा दो, भावें क्लीयर भी कर दो रौला जिहा। वजदी हुई रबाब सारी संगत नूं चंगी लगदी आ, सारियां नूं उपदेश चंगा लगदा। पर वो रबाब बनी किदां? कली वजदी हुई रबाब ही ना वेखो, ये वेखो भी रबाब बनी किदां सी। थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। भाई गुरदास जी कहते ने चंगा रुख वढाए रबाब कढ़ाया। एक रुख वढिया गया और उस रुख दी एक टोटा लिया के एक हिस्सा लिया के ते कारीगर दे अगे भेंट कीता। ते उस कारीगर ने की कीता, उस रुख दे टोटे नूं तेसे नाल अपने शस्त्रां दे नाल घड़ना शुरू किया। जिन्नी जिन्नी वाधू लकड़ सी वो उस कारीगर ने नालों ला दी। वाधू लकड़ जिन्नी सी वो ला के ते घड़द्यां घड़द्यां हौली हौली एक समा इदां आया भी घड़ घड़ के ते उदों रबाब की शक्ल देती। जिहड़ी वाधू लकड़ सी वो नालों ला दी, विचों रबाब की शक्ल कढ़ दी बाहर। भाई गुरदास जी कहते ने संगत विच बिठा के गुरु साहब भी इहो काम करते ने। जिन्नियां मनुख नूं वाधू चीज़ां चंबड़ियां होईयां ने ना, ये सारियां दियां सारियां चीज़ां संगत विच बिठा के महाराज अपने सिख नूं घड़दे ने। जिन्हों जपजी साहिब विच आख्या तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सुदां की सुध। तां करके संगत विच आउणा वा। एक कारीगर ने लकड़ घड़ के वाधू लकड़ नालों ला के ते लकड़ दी रबाब बना दी। वो रबाब जदों संगत विच आण के वजी ते रबाब दी आवाज़ सुन के सारे मंत्र मुग्ध हो गए। वो रबाब जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने नूं दित्ती ते भाई मरदाने ने 50 साल कीर्तन करके सारी दुनिया नूं परमेश्वर दे नाम विच जोड़िया।
भाई गुरदास जी कहते ने इदां दा जे जीवन तुसां बनाउणा ते गुरु के सिखो, उड़ीकां नहीं करनियां चाहीदियां। जदों सतगुर दे घरों आवाज़ आवे भई आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आओ भई गुरु प्यारिओ, जिथे अवस्था मन नूं घड़िया जांदा, जिथे वाधू चीज़ां नूं परां कीता जांदा। वाधू चीज़ां किहड़ियां? जिहड़ियां महाराज कहंदे ने जिहड़े बंदे कई आउंदे ने गुरुद्वारे मत्था टेक के ते उसे वेले चले जाना भी साडे कोल टाइम नहीं, ते जिहड़ियां वाधू चीज़ां ने वो नाल ही चंबड़ियां रहिंदियां, वो परां नहीं हुंदियां। काम ना बिसरिओ, क्रोध ना बिसरिओ, लोभ ना छुटिओ देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा। फिर की फायदा होया? इन्ने पैसे खर्च के एडा समागम कराउंदा जे संगत विच आण के बैठना नहीं, ते निरा ही मत्था टेक के जे कोई इथों चलिया जावे ते काम वाली बिरती फिक्की नहीं पैंदी। काम ना बिसरिओ, क्रोध ना बिसरिओ। क्रोध भी सतवें समान ते हर वेले चढ़िया रहिंदा, फिर बंदे दे पल्ले कख नहीं पैंदा। काम ना बिसरिओ, क्रोध ना बिसरिओ, लोभ ना बिसरिओ देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा। आ चीज़ां सी जिहड़ियां बंदे नूं चंबड़ियां ने, ते जिस करके बंदा किते किते थोड़ी बहुती जे सेवा कर भी लैंदा ते महाराज कहंदे सेवा ओदी निसफल चली जांदी आ, ओनू सेवा कीती दा फल ही प्राप्त नहीं हुंदा। जे सेवा कीती थाएं पाउणी आ किसे ने, कहंदे जे आप सारे महाराज बाणी पढ़ी सेवा कीती साडे थाएं पायो। महाराज कहंदे सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हैं हर हर उत्तम बानी, पर महाराज कहंदे ने गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। जेड़ा गुरु की आग्या मन लेगा ओदी सेवा कीती हुई महाराज मंजूर करनगे, जेड़ा गुरु की आग्या नहीं मनदा ओदी सेवा किदां प्रवान होएगी। ओदे बारे लिखिया होया भी नेफल भई सब सेवा। जिस कथा दे विच, जिस कीर्तन दे विच मनुख दा मन पवित्र हुंदा ना, महाराज मनुख नूं हलूणा दे के कहंदे ने भी की करदा रहा तू जिंदगी दे विच, की कीता ही? जिन्ना मर्जी विहार कर, जिन्नी मर्जी पैली बना, जिन्ना मर्जी जायदाद बना, दरगाह विच तैनूं ये नहीं पुछया जाना भई तू पैसे घट क्यों जमा कीते ने, माया घट क्यों इकट्ठी कीती आ। उत्थे ये पुछया जाना है कि तै नर क्या प्राण सुन कीना, अन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना। ते अखीर नूं मारे कहंदे ने परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत ना चाली। जिथे मन नूं पवित्र करन वाली कथा हो रही सी उत्थे क्यों नहीं पहुंचा तू? उत्थे संगत विच औंकड़ा मार के क्यों नहीं बैठा? आओ मैं अपने विषय ते आवां जो मैनूं हुक्म किया गया है प्रबंधकां वल्लों, महापुरखां वल्लों, कि होले महल्ले के संबंध विच ये गुरमत समागम चलाए जा रहे। और हुक्म ये होया कि कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी जिन्नी सारे गुरमुख प्यारियां को सरवण कराई जावे, क्योंकि वो साहिबे कमाल कलगीधर पातशाह जिन्हें प्यार नाल एक बारी उस सतगुर नूं पढ़ लिया, जिन्हें प्यार नाल उस सतगुर नूं एक बारी विचार लिया, वो तो मुड़ के यही कहूगा भी सच्चे पातशाह जिन्ना चिर दुनिया धरती इदां वसदी रहेगी, सारी दुनिया ते उन्ना चिर ही समा तेरियां सिफतां करे ते तेरियां सिफतां कोई पूरियां नहीं कह सकेगा। कुछ लोगों ने कलगीधर पातशाह जी दे नाल ईर्खा रखदियां होया महात्मा गांधी दे मूँह विचों निकल गए सी कोई बोल। जदों गुरु का खालसा उत्थे पहुंचा सी तो उत्थे बह के जदों प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने विचार की तो महात्मा गांधी नूं अपने साबरमती आश्रम दे विचों रेडियो ते खलो के माफी मंगनी पई सी कि कालपुणे विच मेरे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी दे विरुद्ध अखर निकल गए ने। असल विच गुरु गोबिंद सिंह जी दा कोई देण ही नहीं दे सकदा जिन्नियां उन्हां ने साडे ते परोपकार कर दित्ते। सर जादूनाथ सरकार ने भी कुछ कह दिता सी। चलो चलदी विचार विच जे कोई समा बनिया आओ अपनी सुरत बिरत उत्थे लैके चलीए जिथे कलगीधर पातशाह जी अपनी कलम नाल लिखते ने
कि तहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखै भव लयो। पटना शहर दे विच कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश होया। कल आप जी ने सरवण कर लिया होएगा, जिथों मैनूं हुक्म होया है पटना साहब तो चल के श्री आनंदपुर साहब तक पहुंचना। साध संगत जी, पटना शहर दे विच वो समा आया जिदन असाम तो पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए तो थोड़ा समा पटना साहब दे विच रहे, और फिर समय नूं विचारदिआं होइआं गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने वेख्या कि औरंगजेब अपने तवस्वी बंदियां दे विच बह के ये विचार फैसला कर चुका है कि सारे हिंदुस्तान नूं इस्लाम देश बनाउणा, इत्थे कोई होर धर्म नहीं रहण देना। उन्हें सख्ती करनी देश के उत्ते शुरू कर दी। समय नूं विचार के गुरु तेग बहादुर जी महाराज पहलों पंजाब आ जाते हैं, और महाराज आउंदे कित्थे ने, जिथे गुरु साहब जी ने अपने हत्थीं 2200 रुपये की जमीन खरीद के ना पहाड़ी राजे तारा चंद की पत्नी, वही विधवा पत्नी बीबी राणी चंबा के कोलों 2200 रुपये की जमीन खरीद के अपनी माता के नाम रजिस्ट्री कराई, ते उस नगर का नाम रख गए सी जान लग्या चक नानकी। ते समा विचारदिआं महाराज चढ़दे पासे दक्षिण वाले पासे नूं गए प्रचार करने वास्ते, पूर्व वाले पासे। फिर साध संगत जी समय नाल गुरु तेग बहादुर जी उधरों आनंदपुर साहब वापस आए। हुण महाराज ये वेखदे आ संगत नूं इकट्ठियां कीता, पंजाब की संगत नूं हुक्मनामे भेजे। हुक्मनामे सुन के सारी संगत गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में चक नानकी पहुंची, जिहदा नाम बाद विच आनंदपुर साहब पिया। और औरंगजेब की शक्ति वेख के गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने एक हुक्मनामा लिखिया कि तुसीं परिवार समेत माता गुजर कौर जी नूं, अपनी माता नानकी नूं, सारिआं नूं हुक्मनामा लिखिया कि परिवार समेत तुसीं चक नानकी पंजाब विच पहुंचो। उधर पता की हो रहा सी, बाल गोबिंद राय जी अपने हानियां दे नाल बड़े चोज कीते, कल आप जी सरवण कीते होणगे। मैं एक छोटा जा, क्योंकि हुक्म होया कि समागम नूं थोड़ा जा जशीले तौर पर मनाया जाए, और उस सतगुर ने जिहड़ी जुरत विखाली, छोटी उम्र आ 6-7 साल की उम्र, अपने हानियां दे नाल पटना साहब के बाजार विच खेड रहे सी, ते पटने का जिहड़ा हाकम सी ना, वो लंघिया उधरों दी, ते सारी दुनिया दुकानां विचों निकल निकल के ते हाकम नूं सलाम करदे सी, क्योंकि उन्हां दी सख्ताई बड़ी सी। ते बाजार विच ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बच्चों के नाल खेड रहे ने। उन्हां बच्चों नूं आवाज़ मार के कहिंदे ने, ये हाकम लंघेगा ना इत्थों दी, इहनूं सलाम नहीं करनी किसी ने, बिल्कुल नहीं, सगों इहदा मूँह चढ़ाओ। ते बच्चों ने महाराज का बचन मन के जदों हाकम लंघिया, लोकी झुक झुक के सलामा करते सी, ते बच्चों ने टिचकौलियां कीतियां, बखीली कीती, उहदा मूँह चढ़ाया। हाकम ने भी इस गल का गुस्सा किया। ਜਿਹੜੇ बाजार के जिम्मेवार बंदे सी उन्हें बुला के आख्या भी ये बच्चे किन्ना दे आ, ते ओ जिहदी पग दे उत्ते निक्की जी कलगी लगी हुई आ, वो बच्चा किहदा बड़ा सोहना। उन्होंने आख्या ये नावें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का साहिबजादा है, ते आ बच्चे सारे पटना निवासियों दे आ। उन्होंने आख्या मेरे वालों सुना दिओ जाके कि हाकम जदों आउण, जिद्दां दूजे लोकी झुक के सलाम करते हैं, इन्हां बच्चों नूं भी सिखाओ, ते जे ये निक्के ने सलाम नहीं करने तो इन्हों परां कर दिया करो। कुछ बंदे इकट्ठे होकर सलाह की भी की करिए। उन्होंने पटना निवासी जिहड़े सिख भी सी थोड़े जे, कुछ दूजे लोग, उन्होंने पंजाब गुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के आख्या जी तुहाडे साहिबजादे ने नवाब नूं सलाम नहीं की, ते सगों पटने के जिहड़े बच्चे ने उन्होंने भी सिखाया भी बिल्कुल इन्हां नूं सलाम नहीं करनी। क्यों नहीं सी कीती भला? क्योंकि वो एक अकाल दे पुजारी सी। उन्हां दे मन विच ये गल चलदी सी कि कोई हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ये ते विखावा 4 दिनां दा करदे ने। असी एक दी पूजा करनी है तो थां थां असी किसी ने सिर नहीं झुकाउणा। इस मिशन नूं मुख रखदिआं सतगुरां ने ना सलाम कीती ते ना बच्चों नूं करन दित्ती।
ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਖ ਸਾਂਧਿਆ ਸਭ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਂਝ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਧੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸੁਖ ਸਾਂਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਂਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਆਏ तो उसको सलाम नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और अगों महाराज ये कहते ने, एक ते सलाम नहीं करना, घर आए बैठे तो पवांदी देनी सराहनी नहीं। मारे कहते ने ना तो उन्होंने करो सलाम, ना उन्होंने मूँह लाउना। और जे किते ढीठ हो के नवाब घर आन के बह ही जावे ते नवाब आवे ते ओदा सरकारी रुतबा वेख के ते मारे कहंदे ने साध संगत जी उन्होंने सराहने वाल ना करके बिठा लियो, इन्हां नूं पैंदा वाल करके बिठायो। जे कलगी वाले पातशाह जी ने जुरत विखाली ते जुरत ओदे बापू विच भी घट नहीं सी, क्योंकि उन्हां दे ए बोल ने, भै काहू कहो देत नह भै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञान वाल बंदा ते ओ जेड़ा ना किसे नूं डरावे ते ना किसे कोलों डरे, ना किसे नूं भै दवे ते ना किसे दा भै मन्ने। गरीब नवाज पातशाह जी दा जदों हुक्मनामा उत्थे पहुंच गया, सारी संगत ने आख्या ये रब्बी जोत है। जे बाल गोबिंद राय जी नूं असीं साहिबजादा करके मानने आ ते पटने जिन्हां दी लोकां दी शरधा सी ना, वो पटने दे सेठ लोग उन्हां दियां पत्नियां बड़े बड़े मिठे पदार्थ लिया के गुरु गोबिंद सिंह जी अगे भेंट करदियां सी, इस करके कि कुछ ना कुछ साडा छके ते असीं इन्हां दे मूँह विचों कोई वर कढाईए। जिहदे घर पुੱਤ नहीं सी ना हुंदा, उहने कुछ ना कुछ छका के आखना, जी एक वारी कह दिओ भी तेरे घर पुੱਤ होवे। ते महाराज ने कह देना भी तेरे घर महाराज गुरु नानक साहब पुੱਤ देण। नपुतियां मावां नूं पुੱਤ दिते, जिन्हां घर दुध नहीं सी उन्हां नूं दुध दिते, ते चिरां दे रोगी पए होए जिहड़े सी उन्हां दे रोग दूर कीते। जिहड़े चिरां तो गरीबियां दीयां मारां झलदे सी उन्हां दीयां गरीबियां दूर कीतियां। लोकां नूं प्रतख प्रगट हो गया भई जे गुरु तेग बहादुर जी पटना साहिब दे अंदर नहीं, हर एक दी मुश्किल, हर एक दी विपता मां गुजरी दा लाल दूर कर सकता है। लोकां दे अंदर ये यकीन बज गया सी। फिर की होया, पंजाब विचों जदों हुक्मनामा आ गया कि तुसीं हुण परिवार समेत पंजाब आ जाओ, पर इत्थे माता गुजर कौर जी विचार करदे आ। माता गुजरी जी कहिंदे आ, मेरा मन ये कहंदा मैं एक अपने वालों चिट्ठी पति गुरदेव गुरु तेग बहादुर जी नूं लिखां भी जे इत्थे ही टिक जाइए तो चंगी गल है। पता कारण की सी? क्योंकि माता गुजरी जी ने गुरु तेग बहादुर जी के भरावां दी ईरखा भी वेखी हुई सी। जदों मक्खण शाह लबाणे ने गुरु तेग बहादुर जी नूं प्रगट किया ते महाराज उठ के जदों करतारपुर आए ते करतारपुर धीरमल ने ईरखा करके ते किते लंगर तक दी सोला नहीं मारी भी प्रशादा भी छकोगे तुसीं। गुरु तेग बहादुर जी उथों चल पे, उथों चल पे। मारे कहंदे ने कि साडे वड्डियां दा स्थान श्री अकाल तख्त साहब मेरे पिता ने बनाया, और मेरे दादे पड़दादे दा स्थान सचखंड श्री दरबार साहब, असीं उत्थे चलने आ। ते गुरु तेग बहादुर जी संगत समेत जदों हरमंदर साहब गए, उत्थे गुरु अर्जन देव जी दे भरा दा पोता सी हरजी। गुरु अर्जन देव जी दे वड्डे भाई पिरथी चंद, पिरथी चंद दा पुत मेहरबान, मेहरबान दा पुत अगों हरजी। हरजी उस वेले हरमंदर साहब दा प्रबंधक सी। जदों उन्होंने वेख्या भी ये गुरु तेग बहादुर जी आ गए ने,
जे ये हरमंदर साहब चौंकड़ी मार के बह गए तो साडा रोटी पानी बंद हो जाना। हरजी ने अपना बंदा घल्लिया कि जदों गुरु तेग बहादुर जी परिक्रमा करके दर्शनी ड्योढ़ी लागे आउण ते उदों दर्शनी ड्योढ़ी का दरवाजा बंद कर दिओ, अंदर हरमंदर साहब का भी दरवाजा बंद कर दिओ। और उन्हां दे पुजारियां ने इदां ही कीता। शांति दे प्रतीक गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते ने कोई गल नहीं, इन्हां नूं भुख होगी पैसे दी, माया करके इन्होंने हरमंदर साहब का दरवाजा बंद किया। आप सच्चे पातशाह जी उतों ही मत्था टेक के ते थड़ा साहब वाले स्थान पर बह गए। ये सब कुछ माता गुजर कौर जी ने वेख्या कि मेरा पति दीन दुनिया का मालक गुरु नानक की जोत इन्हां दे अंदर आ ते इन्हां नूं हरमंदर साहब बहना चाहिए सी ते वेखो लोकां ने जिंदे मार लए ने ते अपने परिवार के लोग सी जिन्हां ने दरवाजे बंद किए। इत्थों महाराज वापस करतारपुर लंघ गए। करतारपुर तो गए गुरु तेग बहादुर जी कीरतपुर साहब। कीरतपुर साहब महाराज दे वड्डे भरा बाबा गुरदित्ता जी ने वसाया सी। जदों कीरतपुर गए तो गुरु तेग बहादुर जी दे वड्डे दो भरा सी उत्थे, एक बाबा सूरजमल एक बाबा अणी राय। सूरजमल ते अणी राय दे मूँह इन्ना नहीं निकलिया भी आओ मैं तुहाडे वास्ते मंजा लाइए ते इत्थे बैठो ते तुहानूं जल पानी छकाउने आ। इदां है कि जिदा रुख लैंदा पानी आ ते वापस दिंदा है मिठे मिठे फल, वापस दिंदा है रुखां दी ठंडी छां। मारे कहते ने अखीर वेले रुख अपना आप भी लोगों को भेंट कर दिंदा भी भावें निके निके टुकड़े करके मैनूं चुल्हे विच बाल लो ते भावें मेरे बालियां ते बाले ते शतीरियां बना के कोठियां दे उत्ते पा लो। वो तो अपना आप भी इहो ही हालत आ। गुरु माया लैंदा है कमाई विचों थोड़ी बहुती और गुरु अपने सिखां नूं मुक्ति का दान दिंदा है। गुरु अपने सिखां दियां अवस्थावां उच्चियां करदा। जो मंगदे ने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। कई लोग सवाल करते आ, नास्तिक लोग, गुरुद्वारे पैसा रख के मत्था नहीं टेकना चाहिए। मैं तुहानूं अपनी हड्ड बीती सुना दिना जो मेरे नाल होई। जिद्दां दे बंदियां लागे बहुत उदां दा असर हो जाता, जे थोड़े चिरां बाद बंदा उदां दा हो जाता। इस करके शरधा वाले सियाणे बंदियां दे लागे बहना चाहिए, नास्तिक लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। मैं किते कथा करन जाना सी, सफर लम्मा सी, उहो जिहा प्रचारक एक मेरे नाल बह गया बदकिस्मती दे नाल। वो गल्लां करी गया, मैं जाके कथा करनी सी, मैं तो बोलिया नहीं ज़्यादा, तो मैं उसदी सुनी गया। सुनदियां सुनदियां उहदा असर मेरे उत्ते हो गया। असर होया ते उहदे तो बाद विच अगले दिन ही मैं समागम एक जाना सी ते मेरे कोल सी दसवंध दी माया। दसवंध दी माया उहदे विचों मैं दसवंध दी माया विचों 1100 रुपया कढ के ते मैं गुरु साहब दे चरनां 'च भेंट करना सी। बाकी भेंट कर दिता सी पहलों नेड़ दे गुरुद्वारे 'च। मैं 1100 रुपया लैके गया मेरी जेब विच। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਟਕੀ ਜਾਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ 1100 ਸੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ उस ਵੇਲੇ शुरू किया भी साध संगत जी गुरु बड़ा दयालु आ। जे किसी के कोल पैसा नहीं हैगा तो वह बिल्कुल पैसा रख के मत्था ना टेके, क्योंकि इत्थे कोई शर्त नहीं गी भी पैसे रख के मत्था टेको। जे किसी कोल नहीं वो सगों सतगुर दे कोल मंगो भई महाराज तू कृपा कर साडी झोली विच कुछ पा दे, असीं भी संगत विच आईए ते असीं कोई नमस्कार करिए, किसी गरीब की मदद करिए। नहीं तो इदां कर लो तो फिर अगों आ कहंदे ने जिन्हां कोल हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਸਣੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਬੜੇ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਏ। फिर मेरे मन च भी संगत ने आखना भी अच्छा इन्हां दी गल ही, जिन्हां आप नहीं पता लोगों को की समझाउणगे। वो ये गल मेरे मन में आई, रख ली ते गुरु की नहीं परवाह की ते पैसे जेब च ही रख छड़े। आ गए समागम तो हो के जिन्ने उन्हां दिते वो भी लैके आ गए
पर ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सी। वो 1100 रुपया मेरी जेब विच सी। मैं घर बैठा होया, गुआढ़ी दोवें जी आपो च दी लड़ पे तो मैं छडाउण चल गया। वो लड़ाई मेरे गल पै गई। मुड़ के उत्थों थाणे चल गए। थाणे चल गए तो वो मुक्कदी गल, थाणे गए तो ना रुपया वध ते ना रुपया घट, जिहड़ा 1100 रुपया संगत विचों बचा के लिआंदा वो मेरा थाणे लग गया जाके। ते पूरा थाना 1100 मुक गया, ना रुपया वध ते ना घट। जदों 1100 लग गया तो घर आ गए तो मैं वड्डे वीर नूं आख्या, मैं आख्या वेखो माड़ी किस्मत, जे किते उत्थे मत्था टेकदे ते नाले खुशियां लैके आउंदे। अहीं कौन? गुरु साहब जी दा बोल सुनो। मारे कहंदे तुद नूं सेवे तुद क्या देवे। जेड़े लोकी तैनूं मत्था टेकदे आ तैनूं की दे सकदे आ? जेड़े लोग तेरा नितनेम करदे, तेरी भगती, तेरे घर टोकरियां ढोंदे, तेरा की सवार सकदे आ? तुद नो सेवे तुद क्या देवे, मांगे देवे रहे नहीं। मारे कहंदे हो ते मंगदे ही मंगदे आ, मंगदे ही मंगदे आ, मंगण तो कदी रह नहीं सकदे ते दे भी तू ही सकदा वा। क्योंकि तुद जेवड़ दातार मैं कोई नदर ना आवेई। तुद सबना नू दान दिता, खंडी वरभंडी पाताली पुरी सब लोई। गुरु रामदास जी कहंदे ने देण वाला ते तू आ, तैनूं कौन देण वाला जम पिया है। ये लोगों दीयां गलत गल्लां ने। साध संगत जी साडियां पैसिਆਂ ਨਾਲ समागम चलदे आ, साडियां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गुरु नानक दा लंगर चलदा नहीं। ਅਸੀਂ जो तिल फुल लिया के दिंदे आ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਣੀ 'ਚ ਫਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, मैं एक किताब पढ़ रहा सा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होया मत्था टेकण बारे। एक प्यो अपने पुत वास्ते बाजार विचों 1 किलो अंगरूद लिआया, लिफाफा भरिया अंगूरां दे नाल, ते उन्हें बड़ी खुशी नाल आण के बापू ने अंगूरां दा लिफाफा अपने पुत नूं दिता भी लै पुत अंगूर खा। हुण पुत की करदा? उस लिफाफे विचों 4-5 अंगूर तोड़ के ना ते पुत ने अपने प्यो नूं फड़ाए ते बाकी लिफाफा कोल ही आ। हुण प्यो दे हत्थ ते 4-5 अंगूर आ, तो एक करके खांदा ते नाले मुंडा लिफाफा सांभी फिरदा ते नाले अपने प्यो नूं पुछदा भी पापा मैं तैनूं अंगूर दित्ते आ ना, पापा मैं तैनूं अंगूर दित्ते आ ना। ते बाप ओहदा जिगरा वड्डा हुंदा। बाप ये नहीं कहंदा भी अंगूर ते तैनूं मैं लिया के दित्ते आ, वो कहंदा हां तूं मैनूं दित्ते आ, मैं दित्ते आ तैनूं। मन विच सोचदा भी ये नियाणा वा विचारा, इहनूं ये नहीं पता भी तू ते मेरियां ही दित्तियां विचों 4-5 अंगूर दित्ते आ, बाकी ते सारे तेरे कोल आ ते कहना तूं दित्ते आ। गुरु दा जिगरा एडा वा, साडे भड़ोले भरे दाणियां नाल सानूं लवेरे दित्ते, भांडे भरे, जेबां भरियां, बैंक दीयां तिजोरियां साडियां भरियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ थोड़ा जिहा दे के ते ਅਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ गुरु नूं इन्ना दे के आए, ਅਸੀਂ गुरु नूं मत्था टेक के आए। साध संगत जी तन की सेवा कीतियां तन राजी, संगत विच बैठिया मन राजी, ते जेड़ा तिल फुल लिया के गुरु घर असी सेवा वास्ते दिन्ने आ इमारतां वास्ते, ये इमारतां किसी ने चुक के लै जाणियां, इन्हां ही इमारतां विच बह के तुसी अपना जीवन सफला कर रहे हो। कौन किसी नूं कोई दे सकदा? कोई नहीं। जे किसी नूं कोई दे सकदा, थक के दिल्ली वाले पुछदे इन्हां कोल इन्ने पैसे कित्थों आउंदे आ, इन्हां कोल इन्नी माया कित्थों आउंदी आ। ये साडा सिद्धांत है उच्चा सुच्चा, क्योंकि साडे गुरु दा हुक्म आ दसवंध गुरु ना दे बई, झूठ बोल जो खाए, कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किश ना बसाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आख्या नंद लाल जी लिखो रहतनामा। रहतनामा लिखदे मारे कहंदे ने जेड़ा सिख ये कहंदा कि महाराज दसवंध का मतलब हुंदा कमाई का 10वां हिस्सा, जेड़ा सिख ये गल कहंदा भी महाराज मेरी कमाई थोड़ी आ, मैं तुहानूं दसवंध नहीं दे सकदा, जे मैं दसवंध दवां तो मेरे घर की रोटी नहीं चलनी। मारे कहंदे ने वो सिख झूठ बोलता है, क्योंकि रिजक बंदे ने किसी नूं नहीं देना, जिस परमात्मा ने धीआं पुत पैदा कीते ने रिजक उन्हें सारिआं दा पहिलों लिखिया होया। जेड़ा बंदा अपनी कमाई लुका के ते गुरु नूं आखे भी मैं नहीं दे सकदा, मेरे को कुछ नहीं, मारे कहंदे इहो जे झूठे सिखां दे नाल कदी सांझ नहीं पुग सकदा। दसवंध गुरु ना दे बई, झूठ बोल जो खाए,
कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किश ना बसाए, जेड़ा जेड़ा सिख दसवंध देगा ਉਹਦੇ हर काम का गुरु जिम्मेवार होएगा। और ये भुलेखा वा भी दसवंध देण वालियां दी कमाई घट जाती है, ये भुलेखा नहीं घटदी, नहीं वो वधदी है। गुरु ते होर मेहरबान हुंदा है। किन्नी माया असीं हस्पतालां च ला दिंदे आ, वो क्यों लगदी आ? अपना ही कीता होया कर्म आ। जे उस कर्मां दी मार तो बचना वा ते हस्पतालां विच लाउण दी बजाए गुरु की इमारतां ते लाओ, गुरु के लंगरां वास्ते लाओ। जेड़ा गुरु के घर दा फिक्र करेगा गुरु ओहदे घरां दा फिक्र करेगा। होर असीं की कर सकदे हां? रहो विचार। ब्राह्मण ने आके आख्या ये मत्था क्यों टकाउंदे हो तुसीं, पैसे को लैंदे हो, ये ते साडा हक आ। उत्थे एक तुहाडे वर्गा बड़ा सियाणा सिख सी, ਉਹਨੇ आख्या पंडित जी मंत्र ते तुसीं भी बड़े जानते हो, गल्लां ते तुसीं भी बड़ियां करनियां जानते हो, पर जेड़े काम मेरा गुरु कर सकदा वो काम तुसीं नहीं कर सकते। इस करके असीं तिल फुल तुहानूं नहीं अपने गुरु नूं दिंदे हां। गुरु वर्गा ते कोई भी नहीं। भाई गुरदास जी कहंदे ने आंबन की सदर कत मिटत अंबाली खाए, पिता का प्यार ना परोसी पै पाईए। सुख लैण वास्ते लोकी सियाणियां मलाणियां को तुरे फिरदे आ, लोकी धागे तवीतां वालियां वल तुरे फिरदे आ। पर भाई गुरदास जी कहंदे ने गुरु तो बिना ये जिन्ने भी लोग बैठे होए ना भी तुहानूं सुख दवांगे, आओ सुनो भी वो किदां दे आ। भई जिहड़ी इमली आ वो जिन्नियां मर्जी गल्लां करे, बंदे दा जी करदा अंब खाण नूं ते इमली आखे भी मैं भी अंब वर्गी हाँ। भाई गुरदास जी कहंदे ने इमली कदी भी अंब दा मुकाबला नहीं कर सकती। आंबन की सदर कत मिटत अंबाली खाए, ते पिता का प्यार ना परोसी पै पाईए। जिहो जा प्यार प्यो अपने पुत नूं कर सकदा ना, 100 गवांढी भी इकट्ठा होके आवे ओहो जा प्यार कदी भी बच्चे ना नहीं कर सकदा जिहो जा प्यो कर सकदा। फिर अगों कहंदे आ सागर की निद कत पाईयत पोखर सैं, दिन कर सर दीप जोत ना पुजाईए। एक पासे समुंदर आ जिहदी गोद हीरियां मोतियां रत्नां ना भरी होई आ, एक पासे छप्पड़ आ जिहड़ा डड्डियां मच्छियां ना भरिया। छप्पड़ कदी भी समुंदर दी रीस नहीं कर सकदा। श्री गुर दयाल की दया ना आन देव मैं, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो धाइया। गुरु के सिखो सारी दुनिया फिर के वेख लियो, जेड़ा प्यार गुरु ग्रंथ साहब जी दे सकदे ओहो जिहा प्यार होर नहीं को दे सकदा। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਜਗਾਦੜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਗਰੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ पीर बुद्धू शाह जी फिर मिले बुढ़न शाह गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने मत्था टेकना लिया है। जिदा भगती लिखी है ना 9 प्रकार की, ते विद्या लिखी है 64 प्रकार की, ते 9 साल की उम्र तक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं 64 प्रकार की विद्या आ गई सी। विद्या विच संपूर्ण, बाणी विच संपूर्ण, हर गल की बरीकी नूं समझण दे विच महाराज संपूर्ण होए। और इसे संपूर्णता तो बाद विच फिर मुढ़ बज गया सी गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी दा। और उस शहीदी गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी सी ना साध संगत जी, औरंगजेब ने इन्ना कर लिया फैसला, अपने कट्टड़ जिन्ने भी सज्जद सी, जिन्ने मौलवी काजी सी, उन्होंने बुला के आख्या हुण मैं इनू इस्लामिक देश बनाना चाहना हिंदुस्तान नूं, और की करिए। उन्होंने आख्या जिहड़े तू मंदिर ढाउणे शुरू कीते ने वो कोई हल नहीं हैगा, मंदिर अज ढट जाणगे फिर बन जाणगे। ये काहदा हल होया? जे हल करना तो हिंदुस्तान विच जिहड़े हिंदू धर्म के विद्वान प्रचारक ने, एक तो उन्होंने खत्म कर ते तलवार दे जोर नाल शुरू कर। जिस कौम के विद्वान मर जाण वो कौम नहीं ज़्यादा समा लै सकदी। केड़ा केड़ा धोवां मारे, केड़ी केड़ी गलती मैं अपनी धोवां। तो मारे कहते फिर उन्हें फिर गुरु गोबिंद सिंह जी वाल हथ करके आख्या ऐसा सतगुर मिल जाए मैनू जित लग हसी होवां। जे किते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु मैनू मिल जाए तो मैनू दागां दी फिक्र कोई नहीं, क्योंकि ये मेरे सारे दाग धो देगा। महाराज ने आख्या पंडित जी तुहानू इन्ना भरोसा वा? वो आंदा जी हाँ जी। महाराज कहंदे मोढे तो चादर लाओ। जदों मोढे तो उन्हां चादर लाई
ते दो ढालां भर के सोने दियां गुरु साहब जी ने ओहदे पा दित्तियां। ते सोना भाड़ा बड़ा हुंदा, उहने चाई चाई पंड बन ली पंडित हंसराम ने, मुड़ के चुक्की ना जावे, भारा बड़ा सी। जदों चुक्की ना जावे ते महाराज कहंदे ने ये हुण तुहाडे कोल जाणी नहीं, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह दे कवि हो। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या हाथी लियाओ। पहलों पंडित हंसराम बड़ा खुश सी, जदों हाथी दे के आख्या आ हाथी तुहानूं दित्ता, मोहरां बाद विच दित्तियां सी, पहलों हाथी दित्ता। ते वो जिहड़े पंडित हंसराम सी वो मायूस हो गए, चेहरा सुट लिया ठां। महाराज कहंदे ने मायूस क्यों जे? वो कहंदा जी घर विच गरीबी इन्नी आ, अपने खाण नूं कख नहीं सी लभदा, उत्तों हाथी देता वा, हुण मैं इहनूं खवालिया करूंगा कि मैं खाया करूंगा, गरीबी बड़ी है। महाराज आख्या चादर नूं विछाओ। चादर जदों लाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂ भर के सोने ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ सोने की पंड ਬੱਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ कवि बैठे सी ना प्रचारक, वो चुप हो गए। मारे कहते हुण तुसीं को चुप हो गए जे? वो आंदे असीं पंडित हंसराम की दित्ती हुई माया वल वेख के ईरखा नहीं कीती महाराज, असीं ये नहीं भी इहनूं क्यों नहीं देती आ, असीं ते तां चुप कर गए हैं सच्चे पातशाह। अज ते तूं अपने प्रचारकां नूं ढालां भर भर के सोने दियां दिना, पर जिद्दण तूं शरीर करके दुनिया ते ना रहा, उदण तेरे प्रचारकां दा की बनूगा? ये कौन दवेगा? महाराज खलो के उत्थे कहंदे ने मैं रवां भावें ना रवां, रहिंदी दुनिया तक मेरा खालसा रहेगा, क्योंकि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। और तुसी फिक्र ना करियो, जिद्दां मैं तुहानूं भर भर के तोरना, मेरा खालसा भी तुहानूं इदां ही भर भर के तोरिया करेगा। आ तुहाडीआं जिम्मेवारियां लगियां, तुसी एडे एडे समागम कराउंदे हो ते इन्नी माया दे के तोरदे जे, अज दी माया मुकदी नहीं, कल नूं तुसी फिर दे दिंदे हो। क्योंकि खालसा गुरु साहब जी का खास रूप आ। आओ मैं उत्थे अपनी विचार ते आवां। जिस वेले औरंगजेब की पूरा कहर होण लग पिया कि प्रचारक खत्म कर दिओ, जिहड़ी कौम दे प्रचारक मुक जाण वो कौम ज़्यादा चिर नहीं खलो सकती, तां ही ते अपनी कौम प्रचारकों का इन्ना सत्कार करती है। जे ये हैगे आ ते गुरु की गल सुनाउण वाले खलोते ने तो फिर चढ़दी कला रहेगी। साध संगत कश्मीर तो उन्हें ये जुल्म करना शुरू किया। रोज कश्मीर का हाकम कुर्सी ढा के बह जाता सी, लम्मी लैन ब्राह्मणों की लग जाती सी। जिहड़ा मन जाता सी भी मैं मुसलमान बन जाना, उन्होंने छड्डदे सी, जिहड़ा नहीं सी मनदा उहदा सिर वड्ड के एक पासे कर दिंदे सी। पिंडां दे पिंड खाली हो गए। पंडित किरपा राम ते कुछ ब्राह्मण इन्हां दे पिंड की जदों वारी आई ते इन्हां कश्मीर के हाकम नूं आख्या सानूं थोड़ा जिहा टाइम दिओ, असी विचार करके दसने आ, साडे सिर ना वड्डो, जे साडी सलाह बन गई तो असी मुसलमान बन जाने, मरना जरूर है। कितना टाइम चाहिए? इन्हें कहा 6 महीने टाइम दे दो। 6 महीने का टाइम मिल गया। अमरनाथ की गुफा च जाके बड़े हमन किए, बड़े दप तप किए कि साडी बौड़ी करो। उतों ये आवाज़ आई कि कोई कलयुग के समय में देवी देवता नहीं आ सकता, क्योंकि जिहदा समा वो तख्त ते विराजमान है। कौन? तू सतगुर चौं जुगी, आप आपे परमेश्वर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरों धुर। मारे कहंदे ने ये जदों दी दुनिया बनी आ, ये गुरु उदों दा तख्त ते बैठा होया, कदी शरीर करके बहिंदा, कदी शब्द हो के बहिंदा, कदी शरीर करके बहिंदा, कदी शब्द हो के बहिंदा। उन्होंने आख्या जे अपना धर्म बचाउणा ते गुरु नानक दे घर जाओ। फिर पंडित किरपा राम नूं पता सी, वो सारे 17 पढ़े लिखे जिहड़े विद्वान बड़े इंटैलीजेंट बंदे सी ना, वो 17 चुन के ते लिया के श्री आनंदपुर साहब आया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी दे कोल बैठे ने। रोंदे हुए ब्राह्मणां नूं जदों वेख्या, गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने क्यों रोंदे हो? वो आंदे आ जी साडा धर्म नहीं बचदा, हिंदू धर्म खत्म हो चलिया, कृपा करो सानू हल दसो, असी की करिए? हुण हल दसदे आ गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहंदे हल ये आ, तुहाडा धर्म बड़ा तगड़ा, अपने धर्म दे विचों कोई एक इदां दा बंदा लभो जिन्हें जन्म तो लैके ते अज तक कदी झूठ ना बोलिया हो। इदां दा बंदा लभो जिन्हें जन्म तो लैके ते अज तक सवास सवास नाम जपिया हो। इदां दा बंदा लभो जिन्हें अपनी जिंदगी विच कदी पराया हक ना खादा होवे।
इदां दा मनुख जदों लभ जाएगा ना, बंदगी दी मूरत सच्ची सुच्ची हस्ती जदों लभेगी, ओदा बलिदान होएगा दिल्ली विच, जदों ओदी शहादत हो जाएगी, तुहाडा धर्म रुक जाएगा। पंडित किरपा राम ते दूजे ब्राह्मण अगे नालों भी बहुता उच्ची उच्ची रोए। महाराज आख लगे हुण क्यों रोंदे हो? आंदे जी रोने इस करके साडे धर्म दे विच मत्था टकाउण वालियां दी घाट नहीं गी कोई भी, पर की करिए जिद्दां दा बंदा तुसीं दस्सिआ इदां दा ते कोई भी नहीं लभना। इत्थे ते गल्लां च पा पा के लोकां दीयां जेबां खाली कराईयां जांदियां। इत्थे ते पूजा दे नां ते शनिचर चढ़ गया तेरे ते फलाना चढ़ गया ग्रह, वो कह कह के लोकां नाल ठगी मारी जांदी आ। कित्थों लियाईए भी जिन्हें पराया हक नहीं खादा? कित्थों लियाईए जिन्हें नाम जपिया होवे? मारे कहंदे तुसीं हल पुछिआ सी, मैं दस दिता है। ते मैं कई बारी शहरां दे समागम विच इह गल कहना, जिहड़े ये लोग कहंदे आ ना कि गुरु नानक तो लैके गुरु तेग बहादुर जी तक 9 गुरु सानू चंगे लगदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं असीं चंगा नहीं समझदे। क्यों? क्यों जी उहदे हत्थ विच किरपान आ गई। ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा भी किदां बचे, उन्हें दस दिता भी इदां दा बंदा लभ लो, जदों ओहदी शहादत हो जू ते धर्म बच जू। ते जदों नहीं बंदा लभदा ते फिर जिन्नू चंगा नहीं ना समझदे। उसे ही बापू ने 9 साल की उम्र में आख्या सी, पिता जी ये तुहाडे द्वारे ते आए आ, इन्हां नूं हुण होर किसे पासे ना तोरो, जिहड़ा बंदा तुसीं कहंदे हो इदां दी हस्ती मैं लभ लई आ। लाल जी कौन? मारे कहंदे ने इस वेले धरती दे उत्ते जिस बंदे ने सवास सवास नाम जपिया, जिन्हें कदी झूठ नहीं बोलिया ते जिन्हें कदी पराया हक नहीं खाता, वो तुहाडे तो बिना दूजी हस्ती है ही कोई नहीं दुनिया। क्योंकि तुसी किसी दा हक की खाना? तुहाडे भरावां भतीजिਆਂ ने ईरखा कीती ते तुसीं ते अपना भी सब कुछ छड्ड के ते पूर्व वाले पासे नूं चल गए सी। तुहां किस दा हक की खाना है? हुण इन्हां दी बांह फड़ो। उदण गुरु तेग बहादुर जी महाराज आख्या सी कि जाओ फिर कह दिओ औरंगजेब नूं सारे हिंदुआं दा गुरु गुरु तेग बहादुर आ, एक नूं मुसलमान बना लो ते बाकियां नूं मुसलमान बनाउण दी लोड़ नहीं पऊगी। जे गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन गया ते सारा हिंदुस्तान अपने आप ही बन जाएगा। मैं संखेप विच ही रखा क्योंकि इतिहास ते गुरु गोबिंद सिंह जी का यह भी तो गुरु का इतिहास आ। फिर साध संगत वो हिंदू अपने घर सुख नाल बह के जदों उत्ते फैसला होया, दिल्ली चिट्ठी गई, औरंगजेब बहुत खुश होया भई एक नूं मुसलमान बनाउणा कोई औखा नहीं, नाले वो साधु वो तो संत आ, ਉਹਦੇ ਤੇ जरा क सख्ती करांगे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੀ नहीं जानी। पर इन्हां नूं ਇਹ नहीं सी पता, उन्हें लिखिया होया जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भय नहीं जानै, कंचन माटी मानै। उन्हें यह भी लिखा भी गुर कृपा जिह नर को कीनी, ते जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। वो तो जिदा पानी पानी नाल रल जांदा, इदां रब नाल रले होए सी। महाराज सच्चे पातशाह जी आप शहादत देण वास्ते दिल्ली गए, बहुत शदद भी होया, पर जदों नहीं मने, औरंगजेब दे काजी ने आख्या कि ये रात नूं बूहा खोल के अपने सिखां दे घर जांदे ने, एक पिंजरा बना के विहड़े दे विच इन्हां नूं दो। वो पिंजरा किदां दा सी? जिन्नी हाइट गुरु तेग बहादुर जी दी सी ना, ਉਹਦੇ तो एक गिठ निखा बनाया गया। इस करके निका बनाया भई गुरु तेग बहादुर जी नूं वध तो वध दुख तंगी होवे, सिर सीधा करके ना पिंजरे च खलो सकण, ਉਹਦੇ आले दुआले सूए लाए किते पिंजरे च बह ना जाण। बिल्कुल निगाह जा टाइट पिंजरा बनाया भी जिहदे ते 2 पैरां ते खलोता जावे, बैठा भी ना जावे। जे थक के ढो लाउणगे ते आले दुआले नूं सूए अंदर लाए भी इन्हां दे लक विच पेट विच सूए खुबणगे ते ढो भी ना ला सकण। जदों इदां दे पिंजरे विच मेरे बापू नूं पाया ते 3 सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाल दास जी ने जदों वेख्या, भाई मती दास जी वेख के भुब्बां निकल गईयां। ओ मेरे गुरु दे उत्ते चौर हुंदा सी, मेरा गुरु मखमली बिस्तरियां ते बहिंदा सी, ते इन्हां ने सुंबियां वाले पिंजरे विच पा दिता। कोठड़ी विचों आवाज दे के आख्या, सच्चे पातशाह जे तुसीं नहीं इन्हां दा कुछ करना, मैनू आग्या दिओ, मैं एक हत्थ विच दिल्ली चुक लांगा, एक हत्थ विच लाहौर चुक लांगा, ते इन्हां नूं इदां खड़का देंगा जिद्दां कीर्तन दे वेले गुरु के प्यारे खड़तालां खड़का दिंदे।
जदों ये गल हुई सिपाहियां ने सुन के काजी नूं दस्सिया भई गुरु का सिख इदां बोलदा। ते साध संगत जी उस वेले आए। महाराज ने आख्या मती दास जी तुसीं ये काम कर सकते हो, पर दसो भी इन्नी ताकत कित्थों आई? कहंदे जी तुहाडी सेवा करके। बारे कहंदे जे मेरी सेवा करके तेरे च इन्नी ताकत आ गई है तो मेरे विच कितनी ताकत है, मैं की नहीं कर सकता। इत्थे भाणा मनण आए आ। पर उन्हां चिर नूं काजी आ गया। काजी ने आख्या भई जां ते हुण दिल्ली लाहौर दीयां टक्करां लवा, क्योंकि ये काम खुदा दे आ, तू खुदा दी बराबरी करन दा यतन कीता, जां ते टक्करां लवा ते जां मरन वास्ते तैयार हो। वो भी चाहुंदे सी भई गुरु साहब नूं इन्ना डराया जावे भी इहदे सिखां नूं इन्ना तशद्दद करो गुरु साहब बैठे बैठे उदां ही डोल जाण। फिर साध संगत भाई मती दास ने आख्या मेरे गुरु कोलों आग्या लै दो। महाराज ने आख्या नहीं, बिल्कुल आग्या नहीं। उन्हें कहा झूठ बोलदा, एवें सानू डराउण दा यतन कीता ही। जिस मूँह विचों इदां दी आवाज़ आई उस मूँह की आवाज़ नूं बंद कर देंगे। साध संगत दो बलियां गड्डियां गईयां। भाई मती दास जी दियां बाहां बन्नियां, कपड़े सूट ला दिता। जलाद आरा लैके आ गया जिथों मुझे खालसे का मुੱਢ बज गया सी। जलाद आरा लैके आया ते भाई मती दास जी नूं काजी ने आख्या आरा नहीं हो तेरे को झलिया जाना, जे पीड़ होवे ते दस दी, जदों कह देगा ना भी मैं सिख नहीं मैं मुसलमान बनने नूं तैयार हाँ, तेरा जख्म सी के ते तेरा इलाज कर देंगे। भाई मती दास ने आख्या चलाओ आरा भला वेखदे हां। भाई साहब की पग ला के सिर ते आरा रखिया ते भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने, एक विद्वान ने यह भी लिखिया कि दो उंगलां जदों आरे ने सिर विच पाया चीर, मती दास फिर बोलिया सुन काजी धर धीर। जदों इधर एक ने खिंचा मारिया एक ने इधर, ते दो उंगलां आरा सिर च लंघ गया। काजी ने पूछया भी पता लगा ही आरा की हुंदा? भाई मती दास ने आख्या तेरे आरे विच कोई स्वाद नहीं, क्योंकि मेरे गुरु की बाणी विच मेरे गुरु की सेवा विच इन्ना स्वाद आ भी तेरा आरा मेरे गुरु की सेवा के स्वाद नूं फिक्का नहीं कर सकिया। दो उंगलां जदों आरे ने सिर विच पाया चीर, मती दास फिर बोलिया सुन काजी धर धीर, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, ओए सिर जांदा ते जावे ते मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। ये हुण जाणदे जो हुंदा सिक्खी सिदक इदां ही लंघ जाएगा। ते भाई जी लिखते ने कि अर्धो अर्ध चलाए न आरा, सिख परे द्वै धरत मझारा, दोनों तन ते जपजी पढ़ै, देख के संगत अचरज पढ़ै। पल दे विच भाई मती दास जी नूं चीर के दो टोटे कर दिता। एक टोटा इधर डिग पिया एक इधर। रहिंदा जपजी साहब का पाठ वड्डे होए मूँह ने, दो शरीरां दे टोटियां ने रहिंदा जपजी साहब का पाठ किया। ते दिल्ली दे लोग हैरान हो गए, वो ये सिख किदां दे बने हुए ने, वड्डे होए ने भी जपजी साहब का पाठ किया, चीरे हुए ने भी अरदास की सच्चे पातशाह तू मेरी सिक्खी केसां सवासां नाल निभा दित्ती आ, तेरा धन्नवाद। साध संगत भाई दयाल दास जी नूं देग विच उबाल दिता गया। सती दास जी नूं रूह विच चिण के अग ला के जींदे नूं साड़ दिता गया। इदां शहीदी हो गई। ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने प्रण तो डोले नहीं, उन्हां दा सीस ला के चांदनी चौंक विच शहीद किया। जदों गुरु तेग बहादुर जी दा सीस लथा, गुरु गोबिंद राय जी अपने घर मंजे ते बैठे हुए सी, उधरों शहीदी हो गई। मंजे तो उतर के ते संगत विच बह गए। जदों संगत विच बैठे संगत नूं पता लग गया दिल्ली भाणा वरत गया है। भाई दरगाह मल जी के हथ गुरियाई गद्दी भेजी। पहलों ही गुरु तेग बहादुर जी ने भाई दरगाह मल नूं 4 सिख दिते दिल्ली दे। वो गुरियाई गद्दी गुरियाई की रस्म लैके इत्थे आनंदपुर साहब आए। भाई जैता जी बाद विच सीस लैके आए सी, क्योंकि मैं इतिहास दसम पातशाह का सुनाउणा ज़्यादा। जिस वेले सीस लैके आए चिखा चिणी गई, चिखा दे उत्ते गुरु पिता का सीस रखिया। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने भाई जैता जी जदों दिल्ली मेरे पिता का सीस लथा सिखां विच बड़ा रोह आया होना। कहते नहीं महाराज उत्थे कोई नहीं बोलिया, सिख भी डरदे एक दूजे विच रल मिल गए सी। फिर पता की होया, गरज के बोल के कहते आ सिख भी रल गए सी, हुण इदां दा पंथ तैयार कर देंगे
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਥਾ ਬਕਨ ਮੈਂ ਹੰਸ ਨਾ ਛਪੈ, ਮਿਰਗਨ ਵਿਖੈ ਮੋਰ ਜਿਮ ਦਿਪੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕੋ ਸਿਰ ਢੱਕੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਘਟ ਜੇਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਘਟ ਜੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, M.Tech ਕਰੋ, ਕੋਈ BCA ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਬਦਲਣਾ। ਲੋਕੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਰਗੜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੇ ਬਦਲਣਾ। ਕੀ ਬਦਲ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਣੀ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।